topic is RISC and CISC. RISC is reduced instruction set computer and CISC is complex instruction set computer. So to start, so first we discuss about the microprocessor. As you know, microprocessor is the central processing unit of the computer system that performs the arithmetic and logical operations, which generally include addition, subtraction, transferring numbers from one area to another, or comparing two numbers. So it is the brain of the computer that goes into motion where the computer is switched on. So microprocessor को हम basically 3 parts में divide करते हैं. First one is RISC, CISC and special processor. So first we discuss about the RISC. So RISC is designed to reduce the execution time by simplifying the instruction set. So RISC को basically हम design करते हैं execution time को रिड्यूस करने के लिए. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 100 लाइन्स ऑफ कोड है तो हम कैसे 100 लाइन्स ऑफ कोड को कैसे कंप्रेस करेंगे या कैसे रिड्यूस करेंगे उसका साइज़, ताकि जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम से कम लगे. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ रिस्क. I am repeating, if there is 100 lines of code and then how to execute it in less time and how to compress that 100 lines of codes to do the execution time fast. So this is the work of RISC. Next is each instruction requires only one clock cycle. Reduced instruction set computer में क्या है कि हर एक इंस्ट्रक्शन को execute होने के लिए एक clock cycle की ज़रूरत पड़ती है. To fetch, decode or execute the instructions, we need only one clock cycle. So next we are discussing about the architecture of RISC. So first point is it uses highly optimized set of instructions. Highly optimized का मतलब क्या है कि हमें less वर्क करना पड़े और हमें मोर प्रॉफिट गेन हो. मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारे पास 100 लाइन्स ऑफ कोड है तो कैसे रिस्क उसके साइज़ को कंप्रेस करके उसका एग्जीक्यूशन टाइम को कम करेगा. So this is the term which is optimized, and the second point is it is used in tablets, mobile phones, smartphones, or you can say it is used in the portable devices. So this is the basic architecture of reduced instruction set computer. Here the terms are hardwired control units, data path, data cache, instruction cache and the main memory where the instructions and data are resides. तो आप देख रहे हो हर एक यूनिट्स का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है. सो नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क. सो इंस्ट्रक्शन रिस्क में हम क्या करते हैं, लेस और यू कैन से फ्यू इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर हमने लेस इंस्ट्रक्शंस यूज़ की हैं तो हमें हर एक इंस्ट्रक्शन को एड्रेस करने के लिए कम मोड्स की ज़रूरत पड़ती है, और यू कैन से रिलेटिवली फ्यू एड्रेसिंग मोड्स आर यूज्ड. नेक्स्ट इज़ लिमिटेड मेमोरी एक्सेस टू लोड एंड सेव इंस्ट्रक्शन. हमें जो मेमोरी एक्सेस है उसकी लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है टू लोड एंड सेव द इंस्ट्रक्शन. एंड ऑल दी ऑपरेशंस आर डन विद इन द रजिस्टर ऑफ द CPU. सभी जो ऑपरेशंस है रिस्क में वो सारे रजिस्टर्स में परफॉर्म होती हैं जो CPU के अंदर होता है. नेक्स्ट इज़ जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसका फ़िक्स लेंथ होता है जिसको हम इजीली डिकोड कर सकते हैं, और जो हर एक इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होती है वो एक क्लॉक साइकिल में होता है. एंड लास्ट पॉइंट इज़ हार्डवायर्ड रैदर देन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट reduced instruction set computer. Next we are discussing about the CISC processor, complex instruction set computer, and it is used to minimize the number of the instruction program and ignoring the number of cycle per instructions. Means clock cycle does not matter but the instructions are minimized. हम इस केस में CISC प्रोसेसर में हम इंस्ट्रक्शन को तो रिड्यूस करेंगे बट हम क्लॉक साइकिल्स यहाँ यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन द डेस्कटॉप्स और यू कैन से लैपटॉप्स. एंड इसमें जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है, रैम की रिक्वायरमेंट है, इट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू रिस्क प्रोसेसर. सो आप आर्किटेक्चर देख रहे हो, दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ द CISC प्रोसेसर. कंट्रोल यूनिट है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा पाथ है, कैश मेमोरी है एंड मेन मेमोरी है. तो आप इनका डायरेक्ट कनेक्शन देख सकते हो कि किस यूनिट का किसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है. सो नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ CISC. Many addressing modes are used, and next is large number of instruction used that can be minimized.
हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं जिसको बाद में हम रिड्यूस कर सकते हैं उसका साइज़ को। एंड वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड सेवरल साइकिल में बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन। रिस्क में क्या था, हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक साइकिल की रिक्वायरमेंट होती थी, बट इस केस में several cycles may be required to execute one instruction. And the last point is instruction decoding logic is complex.